Right? Is this clear? Then commission paid, nominal and expense. Commission received, nominal and income. Interest paid, nominal and expense. Interest received, nominal and income. Rent paid, nominal and expense. Rent received, nominal and income. Bad debts, nominal and expense. Bad debt recovered, nominal and income. Income tax, that is drawings. Why? Sole proprietor पे कभी separate, even on partnership. Income tax separately. I mean income tax किस पे होता है? Owner का income. Partnership के profits पे tax होता है. That is partnership tax. That is different. Firm का tax. But income tax is never on the business. Income tax is on the personal income of the owner. So this is always drawing. यहाँ पे दिखा मतलब owner पैसा लेके गया. So that is personal and drawing. That is personal and drawing. Provident fund investment मैंने अभी अभी डिस्कस किया. That is real and asset. Depreciation, nominal and expense. Appreciation, nominal and income. Sundry receipts, nominal and income. Miscellaneous receipts. Sorry, nominal and income. Sale of scrap, nominal and income. Outstanding expenses. पर्सनल एंड लायबिलिटी, ये चारों पर्सनल है. कौन से? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल एंड रिसीव्ड इन एडवांस. और इसमें से दो एसेट है, दो लायबिलिटी है. प्रीपेड एक्सपेंस क्या है आपका? एसेट. एक्सपेंस दिया है, बेनिफिट लेना बाकी है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी. इनकम हो गया, पैसा देना बाकी है. इनकम रिसीवेबल एसेट, आपने काम कर दिया है, पैसा आना बाकी है. और प्री रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी, एडवांस आ गई है, बेनिफिट देना बाकी. ठीक है. तो प्रीपेड एक्सपेंस पर्सनल एंड एसेट. इनकम रिसीवेबल पर्सनल एंड एसेट. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल एंड लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग वेजेस पर्सनल एंड लायबिलिटी. सैलरी पेएबल पर्सनल एंड लायबिलिटी. कमीशन रिसीवेबल पर्सनल एंड एसेट. इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल एंड लायबिलिटी. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड personal and asset. Accrued interest receivable personal and asset. Loss on sale of asset nominal and expense. And loss due to fire floods nominal and expense. Profit on sale of asset nominal and income. Compensation nominal and generally it is expense. Sometimes it may become your income. अगर आपको किसी ने compensation दिया तो इनकम भी हो सकता है, बट अज्यूम करना है नॉर्मल केसेस में इट्स योर एक्सपेंस, बिकॉज वी आर बिजनेस ओनर्स एंड कोई वर्कर, कुछ एम्प्लॉय, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वी नीड टू कॉम्पेंसेट. सो नॉमिनल एंड एक्सपेंस. व्हाट आर अलाउंसेस? डिस्काउंट नहीं है. लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस. एम्प्लॉय को देते हो आप खाना पीने का, उसका रिइंबर्समेंट के लिए. दैट इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस. कन्वेयंस नॉमिनल एंड एक्सपेंस. ट्रेन भाड़ा, बस भाड़ा. नियॉन साइन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग है वो नॉमिनल एक्सपेंस. बिल्डिंग मेंटेनेंस नॉमिनल एक्सपेंस. बिल्डिंग मेंटेनेंस इज नॉमिनल. ऑफिस का बिल्डिंग, घर का नहीं, और ऑफिस बिल्डिंग. ओके, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. Unless and until anything is specified, now you assume everything belongs to what? Business. Unless and until there are few terms like house rent. House तो business का नहीं हो सकता. Son school fees, daughter's marriage expense, वो सब तो business के नहीं है. समझ में आया? आपका personal travel, personal tours, ये सब भी business का नहीं. Life insurance, ये भी business का नहीं है. Correct है? Okay? General insurance belongs to business. Life insurance doesn't. Clear? Hello. What about extension of building? Real and assets. Real and assets. Perfect. Motor car. Real and assets. Repairs to motor car. Nominal and expense. Vishal's loan. Personal and liability. Proprietor's wife's loan. Personal and liability. Livestock. Real and asset. Pension fund या provident fund is one and the same. पर्सनल एंड लायबिलिटी. पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, दोनों पर्सनल एंड लायबिलिटी. कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नॉमिनल एंड एक्सपेंस. अब ये जो चार है ना नीचे वाले, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको पता है अभी, एनआरडीडी. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एनआरएफडीडी. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, एनआरएफडीडी. ये चार है ना ट्रेडिशनल में वैल्यूएशन कैटेगरी में आते हैं. पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एक चौथा कैटेगरी होता है वैल्यूएशन. तो ये है ना दे आर रिलेटेड टू वैल्यूइंग अ पर्टिकुलर एसेट और लाइबिलिटी. जैसे आरडीडी है, वो डेटर्स को वैल्यू करता है, ये कितना पैसा नहीं देगा, कम होएगा, वैल्यू करता है. एनआरएफडीडी ऑल्सो वैल्यूज द डेटर्स. एनआरएफडीसी वैल्यूज द क्रेडिटर. रिमेंबर, क्रेडिटर से घटाते हो कितना कम देना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स. सो ट्रेडिशनल में वैल्यूएशन कैटेगरी है. इजी वे टू रिमेंबर, प्रो. बट मॉडर्न में याद रखना, मॉडर्न में व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउट, व्हाट इज आरडीडी फॉर द बिजनेस, लायबिलिटी. तो मॉडर्न में ऐसा लिखना है वीएल, वैल्यूएशन एंड लायबिलिटी. अच्छा, सिमिलर टू आरडीडी यू हैव एनआरएफडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. दैट इज ऑल्सो वैल्यूएशन एंड लायबिलिटी. But what about discount on creditor? Reserve for discount. That is valuation and asset. Okay? Clear है? RDD, NRFDD, NRDD is a liability. NRFDC is an asset. What is provision for depreciation? Provision for depreciation के बाजू में लिखो valuation and liability. Valuation and liability. ये concept आपको ये साल है, डेप्री चैप्टर में आएगा. इसका मीनिंग सिंपली समझ लो. देखो, ये एसी है, ये इसका कॉस्ट समझो 50,000 है विद इंस्टॉलेशन. लाइफ 5 साल है और हर साल में कितने से डेप्रिशिएट करेगा? 10,000 से. स्क्रैप नील है तो पहला साल 10,000 करेगा तो मैं क्या करेगा, एसी में से माइनस करेगा, पीएनएल में डालेगा, तो ये 40 हो जाएगा, पीएनएल में 10 दिखेगा. दूसरा साल ये 30 हो जाएगा, पीएनएल में 20, मतलब 10 और हर साल 10 लॉस जा रहा है ना. फाइनल अकाउंट्स किया आपने, एक्सपेंस, एसेट घट रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, बराबर है. तो इधर से माइनस करके इसको 30 हो जाएगा, उधर 10, इधर 20 हो जाएगा, उधर 10, इधर 10 पैसा. दैट इज व्हाट यू डू नॉर्मली. नाउ देयर इज वन मोर वे ऑफ प्रेजेंटिंग दिस डेप्रिसिएशन. हाउ? कंपनीज नहीं, रिटर्न ऑन वैल्यू इज अ डिफरेंट मेथड ओनली. प्रेजेंटेशन की बात है. डेप्री वही है 10, लेकिन मैं क्या करेगा मालूम है, पहले साल 10,000 पीएनएल में डालेगा, लेकिन एसेट में से 10 माइनस नहीं करेगा, 50 पर ही रहने देगा इसी को. 10,000 एक सेपरेट अकाउंट में डालेगा, उसको बोलते हैं पीएफडी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. और बैलेंस शीट बनाते वक्त मैं क्या करेगा मालूम है, बैलेंस शीट बनाते वक्त व्हाट आई विल डू, I will show my air conditioner in the inner column at 50 minus debris के जगह I will write PFD 10. So this will become 40. Now first year it doesn't look that different, but now when you are in the year 2, what I will do, 40 का वैल्यू 30 हो गया, मेरे को मालूम है, बट मैं इसको डायरेक्टली 40 minus 10 30 नहीं दिखाएगा. सेकेंड ईयर का 10 डेप्री हुआ है, पीएनएल में डालेगा 10, वो डालना ही है. एसेट से माइनस करने के बदले व्हाट आई विल शो, पीएफडी अकाउंट बना देगा. एक्चुअली पीएफडी इज अ लायबिलिटी. प्रेजेंटेशन के लिए मैं क्या करेगा, सेकेंड ईयर एयर कंडीशनर 40 नहीं 50 लेस पीएफडी 10 प्लस 10 20. नहीं किया तो चलते सर ऐसे नहीं चलेगा. Certain businesses, what do? They show assets over here and liability में PFD दिखाते हैं, वो चलेगा. बेटर प्रेजेंटेशन ये है, जैसे RDD is a liability लेकिन डेटर से माइनस करके दिखाते हैं, वैसे ही PFD is also a liability. प्रेजेंटेशन के लिए यहां से थर्ड ईयर क्या करोगे पता है, 10,000 पीएनएल में डालोगे डेप्री, लेकिन 30 minus 10 20 नहीं. थर्ड ईयर आई विल शो एयर कंडीशनर एट 50 minus PFD, it will become 20 plus 10 30. So your final value is 20. तो इसका फायदा क्या है, ये मेथड का फायदा ये है कि एट अ ग्लैंस आपको एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट भी दिख रहा है और उसपे जमा हुआ डेप्रिसिएशन भी दिखाई दे रहा है. The moment you see final accounts, you will see the original cost of the asset in all the years. एंड ऑल्सो उसमें कितना जमा हुआ है डेप्रिसिएशन. पहले साल आपको दिखेगा अभी तक 10,000 से डेप्रिशिएट हो चुका है,
अभी तक 20 से हो चुका है, अभी तक 30 से हो चुका है, आज के डेट में वैल्यू क्या है 20,000 ऐसे। समझ आया? चौथे साल में क्या करोगे 50 माइनस 40, पीएनएल में जा ही रहा है, एसेट में से डायरेक्टली इधर इधर आप क्या करते हो 50 माइनस 40, सेकंड ईयर आप क्या करते हो 40 माइनस 10। डू यू नो कितने का था पहले? तो फॉर कंपनीज दिस मेथड इज कंपल्सरी, दिस मेथड पीएफडी। फॉर स्मॉल बिजनेसेस वी कैन फॉलो दिस मेथड, सोल प्रोवाइडर पार्टनरशिप, दिस थिंग इज फाइन, बट बिग कंपनीज यू बेटर गो फॉर दिस बिकॉज दे नीड टू नो ओरिजिनल कितने का था, उसके हिसाब से जजमेंट लेके नया एसेट का पैसा साइड पे रख सकता। बोलो 5 अलग अलग एंट्री, 5 अलग अलग एंट्री, मतलब 5 एंट्री करवा। अरे यार बरस है, दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। आप नॉर्मली क्या करते हो 50 माइनस 10 और इधर 10, फिर 40 माइनस 10 और पीएनएल में 10। इधर पीएनएल वाला 10 तो सेम ही है, खाली 50 माइनस 10 40 माइनस 10 करने के बदले एड दैट टू पीएफडी। फर्स्ट ईयर पीएफडी 10, सेकेंड ईयर पीएफडी 20, थर्ड ईयर पीएफडी 30, फोर्थ ईयर पीएफडी 40 और पूरा पीएफडी उठा के एसेट में से। सर तो मतलब पीएफडी में फर्स्ट ईयर 10,000, सेकंड ईयर में 20,000 एग्जैक्टली। तो फिर तो नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है ना। हाँ, इसी को बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो पीएफडी कुछ है नहीं, खाली खोखा है, एक्सपेंस तो पीएनएल में जा ही रहा है, पीएनएल में तो 10 जा रहा है। एसेट में से डायरेक्टली माइनस करने के बदले आप एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो पीएफडी अकाउंट, एसेट में से माइनस करने के बदले पीएफडी अकाउंट में डाल। पीएफडी इज अ लायबिलिटी, खोखा लायबिलिटी, खाली कम, उसमें कुछ पैसा नहीं है, इंफॉर्मेशन। इंस्टेड ऑफ शोइंग एसेट एट 40 वी आर शोइंग एसेट एट 50 एंड पीएफडी एट 10। नेक्स्ट ईयर इंस्टेड ऑफ शोइंग एसेट एट 30 वी आर शोइंग एसेट एट 50 एंड पीएफडी एट 20। Third year, instead of showing asset at 20,000, we are showing asset at 50,000 and PFD at 20,000। और फिर वो पूरा PFD एसेट से माइनस कर देगा, लायबिलिटी में नहीं दिखा के एसेट में से माइनस है। वो लायबिलिटी खाली खोखा लायबिलिटी है, कोई यूज का नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया। समझा? इधर 50, इधर 10, लायबिलिटी में 10, तो ये नेट 40 हो गया, वैसे दिखा रहे हो। इंस्टेड ऑफ डूइंग 50 माइनस 10 40 यू आर शोइंग लाइक दिस। सेकंड ईयर ये 50 है और पीएफडी कितना है 20, तो वही 20, वही लायबिलिटी वाला 20 मैंने यहां से माइनस करके दिया, सेम चीज। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस 30 डायरेक्टली व्हाट आर वी डूइंग, इधर एसेट 50 और इधर लायबिलिटी में पीएफडी 20। थर्ड ईयर इधर 50 और लायबिलिटी में पीएफडी 30, वो लायबिलिटी है पीएफडी, बट प्रेजेंटेशन के लिए यू डोंट शो इट अंडर लायबिलिटी, यू सबट्रैक्ट इट फ्रॉम या 5 वर्ष की बैलेंस शीट है, 1 वर्ष नीचे, बट अरे बट लास्ट ईयर नहीं चाहिए, बस 5th ईयर एवरी ईयर विल मेक जस्ट वन बैलेंस शीट। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ वो कैसा दिखेगा हर एक बैलेंस शीट, ऐसा 5 नहीं बनाने का, एक ही है। मतलब समझ में पीएफडी का अकाउंट पीएनएल में बनाते हैं, पीएफडी का अकाउंट पीएनएल में नहीं, पीएफडी इज अ लायबिलिटी, वो कैरी फॉरवर्ड है। डायरेक्ट लायबिलिटी। हाँ, इसकी जर्नल एंट्री है ना, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन नॉर्मली? डेप्रिसिएशन टू एसेट, दिस इज 10,000। जब आप पीएफडी बनाते हो ना तो आपकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, एक्सपेंस बढ़ा और लायबिलिटी पर। एसेट को आप कॉस्ट पर ही दिखाते, खाली पीएफडी में जमा हुआ डेप्रिसिएशन बढ़ते जाते, जमा हुआ डेप्री बढ़ते जाते। अच्छा मुझे बताओ 4th ईयर में कैसे दिखेगा 4th ईयर का बैलेंस शीट? एयर कंडीशनर दिखेगा आपको 50 लेस पीएफडी कितना दिखेगा 40 और इधर दिखेगा 10, और लास्ट ईयर 5वें साल में ये 50 और ये दिखेगा पीएफडी पूरा 50 और ये हो जाएगा। द मोमेंट इज बिकम नेल, अभी कॉस्ट भी उसका 0 हो चुका है, पीएफडी भी 0, दोनों हट जाएंगे बैलेंस। इज दिस क्लियर? तो पीएनएल अकाउंट में 2 डेप्रिसिएशन आएगा कि 2 पीएफडी? 2 डेप्री, ये देखो ना इधर एंट्री मारा है, डेप्री टू एसेट था, उसकी जगह डेप्री टू पीएफडी, पीएनएल टू डेप्री तो हो ही रहा है, ये भी पीएनएल में जा रहा है, ये भी पीएनएल में जा रहा है। एसेट से माइनस करने के बदले लायबिलिटी दिखा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इज दिस क्लियर?
बोलो समझा अभी? ये डिटेल में आपको डेबिट चैप्टर में मैं करवाऊंगा ये मैं, ओके? सिर्फ इतना याद रखना, डेबिट को एसेट से माइनस करने के बदले, एसेट से माइनस करने के बदले लायबिलिटी में, ये नेगेटिव एसेट है, ये पीएफडी है ना, नेगेटिव एसेट क्या है? एसेट जितने से कम हो चुका है, हवा है हवा, खाली इंफॉर्मेशन के लिए दिखा रहे। आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हो, उसमें आपको दिख रहा है मशीनरी 50 करोड़ और पीएफडी दिख रहा है 20 करोड़, तो इसका मीनिंग आप क्या निकालेंगे? मशीन का वैल्यू 50 करोड़ नहीं है अभी, 30 करोड़, उसमें ऑलरेडी 20 से डेप्रिसिएशन, वो 20 एक साल का डेप्री नहीं है, 2, 3, 4, 5 जितने साल से वो यूज में है उतने साल का जमा हुआ डेप्री। पीएफडी उतने साल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं। दिखा रहा है कि कॉस्ट माइनस टोटल डेप्री कितना है, क्या बोलो समझा? डेप्री में डिटेल में आएगा, तो क्लासिफिकेशन में इट्स अ लायबिलिटी एंड वैल्यूएशन, लायबिलिटी एंड वैल्यूएशन, क्लियर? कंपनी के बुक्स में आपको कोई एसेट दिख रहा है 60 करोड़, 60 करोड़ और उसका पीएफडी भी दिख रहा है 60 करोड़, इसका मतलब आज के डेट में उसका वैल्यू कितना है? 0 है, तो सारा बुक्स में क्यों है वो एसेट? एक एसेट है जिसका कॉस्ट 60 करोड़ है और उसमें पीएफडी भी 60 करोड़ दिख रहा है, मतलब आज के डेट में वैल्यू 0 है, तो है क्यों? खत्म हो गया, हो गया ना। बुक्स में है ना, कोई मशीन है 60 करोड़ की कॉस्ट है, ये ओरिजिनल कॉस्ट, और उसमें पीएफडी जमा हुआ डेप्री भी 60 करोड़ दिख रहा है, पिछले 2 साल प्रोविजन है। हाँ, प्रोविजन मतलब वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, यस, 60 करोड़ से पूरा डेप्रिसिएशन। अभी तक वो एसेट सेल नहीं किया है, वर्किंग कंडीशन में हो सकता है, मशीन चल रही है, फिजिकली चल रही है, बुक में क्या हो गई है? 0, तो बुक में 0 होने के वजह से एक्चुअल मशीन को फेंक दोगे? मेरा एसी है, मैंने सोचा था 5 साल की लाइफ है, 5 साल की लाइफ है, 10 हजार से डेप्रिशिएट किया, बुक वैल्यू क्या हुआ? 0, फिर भी हवा दे रहा है, अच्छे से पढ़ा है दीवार पे, या फेंक तो नहीं, बुक में 0 होगा तो निकाल देगा, नया लेगा, और आई विल यूज इट, आई विल कीप ऑन यूजिंग इट। तो ऐसा भी एसेट बुक में हो सकता है जिसमें पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया हो, क्योंकि फिजिकल लाइफ अलग होती है, इकोनॉमिक लाइफ अलग, कभी ज्यादा भी चल सकता, तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना है, वो ऑलमोस्ट मरेले कंडीशन में रहेगा, ऐसा असम्पशन रहता है। लेकिन उसमें आप जब भी बेचोगे उसको, तो जो भी पैसा आएगा पूरा का पूरा क्या होगा? प्रॉफिट, क्योंकि बुक वैल्यू उसका क्या हो गया? 5,000 में भी बेचा तो 5 का 5 प्रॉफिट, 10 में बेचा 10 का 10। जोड़ भी कर सकते हैं, प्लीज ज्यादा दिखा दो, फिर 0 हो जाएगा, सभी करते ही है। डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन जजमेंट, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन एक्सेस चार्ज किया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम चार्ज किया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बताऊंगा सेवरी चैप्टर में करेंगे। सर 5 साल के बाद ये और चला तो फिर 6 ईयर में कुछ एंट्री नहीं होगी, कुछ नहीं, तो जब बेचोगे तब तो सर जब कंपनी उसको पढ़ना चाहिए तो वो लोग ऐसा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा डेप्रिसिएशन की वजह से, और जब ये इनकम ज्यादा हो कंपनी का बोलते हैं डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। कैन डू, गोल कर सकते और करते हैं, करना नहीं चाहिए। टैक्स कम भरना है आपको, या फिर हाँ तो खर्चा ज्यादा होगा। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा बताना है, शेयर प्राइस बढ़ाना है, कम बताओ। अच्छा, पीछे एक्सरसाइज दिया है, क्वेश्चन 1, 2 and 3, कैन यू सी दैट? मिला 1 और 2, सॉरी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिख रहा है। प्रोविजन फॉर डेब्री, यही पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेब्री इज वैल्यूएशन एंड लायबिलिटी।
वैल्यूएशन एंड लाइबिलिटी, नेगेटिव एसेट इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएशन। अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिख रहा है, ये घर पे करना है, उधर ही मार्क करके आना। पीछे आ जाओ, जर्नलाइज, ओपन द जर्नल। अभी नोटबुक ओपन करो, जर्नल ड्रॉ करना है सबको। ऑल ऑफ यू ड्रॉ द जर्नल। नॉर्मल चलो जर्नल ड्रॉ करियो फटाफट। These are our basic entries to test your knowledge. Okay? Draw the journal. First question. We are skipping narration. Hope you are comfortable with narration. जर्नल बेटा ड्रॉ किया, लिखो। तो एक्सरसाइज घर पे करना है, कुछ डाउट है तो मैसेज करना है, ठीक है। आई डिस्कस दोस्त क्लासिफिकेशन वाला दिया ना अभी, उधर ही सॉल्व करना है टेक्स्ट बुक में। आउटस्टैंड बताता हूं, देखो। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, व्हाट इज द एंट्री? बैंक टू कैश, बैंक एसेट बढ़ा, कैश एसेट घटा। राइट डाउन। फर्स्ट वन बैंक टू कैश या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा टू कैश, बैंक टू कैश या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा टू कैश। बैंक टू कैश या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा टू कैश, ठीक है। विड्रॉन कैश फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक, कैश बढ़ा बैंक घटा। नो नरेश, स्किप नरेश। एग्जाम में लिखना है बट अभी आता है ना, सिंपल चीजों में डोंट वेस्ट टाइम। बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, समझ में आया? व्हाट इफ इट वाज फॉर पर्सनल यूज? Sent a bank draft of 2000 to Rohit and incurred bank charges of wrong. Bank draft is